Santosh Misra, and today I am going to discuss question number 50 of admission of partner. We had already covered the revaluation account, format of revaluation account, and journal entry of revaluation account. Now, in this question, we will do all journal entry and all the concept relating to revaluation account. This is full-fledged question of revaluation account. First, we have to prepare revaluation account, and after that partnership capital account and balance sheet. And sometime it is given by the question, required by the question, the journal entries. So we have also prepared to journal entry. So in question number 50, question says that A and B are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Old ratio is 3:1. On 1st April 2018, they admitted C as a partner on the following term. C bring 1 lakh as his capital and 50,000 for his goodwill in cash, and half of the amount of goodwill which is brought by new partner is withdrawn by old partner A and B. The total, it is all about the information capital and goodwill. Premium for goodwill is brought by new partner is 50,000, and half amount 25,000 is withdrawn by A and B. After distributing 50,000, only 25,000 withdrawn by A and B. The question says regarding revaluation, the value of land and building is to be appreciated by 15%. Land and building is appreciated by 15%. And stock and machinery and fixtures is reduced by 7% and 5%. It is the reduction in asset. That's why it should be debited in debit side. Stock is reduced by 7% and machinery is reduced by 5%. In next part, the provision for doubtful debt be made at 5%. Provision for doubtful debt is always made on the amount of book debtor. So the provision should be made on 2 lakh at the rate of 5%. And it should be recorded in the debit side of the revaluation account, because liability has been increased by provision. And C is to 15,000 be provided for an unforeseen liability. Once again, liability has been increased, and that's why it is also recorded in debit side of the revaluation account 15,000. And C is to be given 1/5 share, and profit sharing ratio between A and B remain the same. Means it is the first case for the calculation of new ratio, and there is no need to calculate new ratio. And we already assume that we can assume that the sacrificing ratio will be old ratio, because this is the case number 1, and you can calculate fresh new ratio, and after that sacrificing ratio. It's on your option. And a balance sheet is given in the question. Cash in hand, book debt, stock, machinery and fixtures, land and building.
sundry creditor 3,50,000, capital account A and B 4 lakh and 2 lakh is given. So first of all we will prepare a revaluation account. In revaluation account, stock is reduced by 7%. Stock is reduced by 7% and the value of stock is given in the balance sheet is 1,80,000. 1,80,000. So stock 1,80,000 given in the balance sheet. Stock 1,80,000 given in the balance sheet and 7% of 1,80,000 is equal to 12,600. And stock has been depreciated by 7%, which is 12,600. So stock asset has been reduced. That's why it is loss for the organization, and it should be debited in the revaluation account 12,600. And also second effect, we have to deduct 12,600 from the balance sheet in the balance sheet from stock, and 1,67,400 is the revalued figure of the stock. 1,67,400. To machinery has been also reduced by 5%, and the original value of the machinery is 2 lakh, and 2 lakh the value of machinery is 2 lakh. It is given in the balance sheet, old balance sheet, and so we will calculate 5%, and 5% is 10,000, and we will deduct 10,000 from the given value of the machinery and fixtures, and 1,90,000 is the revalued figure of the machinery and fixtures. 1,90,000, and it is also shown in the debit side because the value of machinery has been reduced, and when asset is reduced, it is lost for the business, and it should be recorded in debit side of the revaluation account. Same, the provision for doubtful debt. A provision is to be created on doubtful debt, on bad debts. That is, book debt is 2 lakh. The 5% of 2 lakh is 10,000, and after deducting the provision for doubtful debt, 1,90,000 is the book value of debtor, you can say book debts. And it is also debited in revaluation account because it is a loss for the business. And provision for liability, a 15,000 amount is to be provided for unforeseen liability, that is 15,000, and when liability has been increased, that's why we record in the debit side of the revaluation account, and also it is recorded in liability side of balance sheet, 15,000. The land and building, the value of the land and building has been appreciated means increased by 15%, 14,500, and 14,500 is added back in the old value, which is given in the old balance sheet, 3,30,000, and 3,30,000 plus appreciation 49,500, and the revalued figure of the land and building is now 3,79,500. And 11,000 is an accrued commission,
and accrued commission is the asset for the business, and it is unrecorded. And now when we record the accrued commission, asset will increase by 11,000 and it should be recorded in the credit side of the revaluation and also asset side of the balance sheet. 11,000. All the item in revaluation account has been posted in balance sheet. Now the value of credit, the total of credit side is exceed from the total of the debit side by 12,900, and it shows the profit on revaluation. It shows the profit on revaluation. So student, it is distributed between the partner A and B in the old ratio. In their old ratio, and old ratio is 3:1. It is given in the question. 3:1. 12,900. When 12,900 distributed in 3:1, 12,900 into 3 by 4, 12,900 into 1 by 4 is 3,225, and this figure is transferred to the capital account of the partner, and this is recorded in the credit side. The balance of partner's capital has been increased by this amount. That's why the profit on revaluation increases the balance of the partner's capital. That's why it is recorded in the credit side of the partner capital. When partner's capital will increase, it should be recorded in credit side, and when partner's capital will decrease, it should be recorded in debit side. So after the recording of the profit on revaluation, this figure is. Now it is given in the old balance sheet, the capital account of old partner, that is A's old capital is 4 lakh and B's capital was 2 lakh, and C, a new partner, bring 1 lakh as his capital. So 1 lakh by bank account, 1 lakh, it is recorded in C's capital account, and C brings 50,000 as premium for goodwill in cash, and this amount is distributed between old partner A and B in their sacrificing ratio. So sacrificing ratio is the old ratio because it is case number 1. It is already discussed that. So 50,000, when we distribute 50,000 in sacrificing ratio 3:1, 37,500 and 12,500, the capital account will increase. The capital account of A and B will increase 37,500 and 12,500. Half amount of the premium for goodwill is withdrawn by old partner, then half amount to bank. It is withdrawn 18,000. So half amount of 37,500 is 18,750, and 12,500, 6,250. It is debited to partner's capital account because partner withdraw the premium for goodwill in cash. That's why it is recorded here. And after recording all transactions, the balance will come 4,28,425, 4,28,425, 2,09,475, and 1 lakh. This is the closing balance of partner's capital account. It will recorded on the liability side of the balance sheet. Liability side of the balance sheet, A's capital, B's capital, and C's capital. And after
one amount is remaining, the balance of cash. Sir, how can we calculate the balance of cash? The beginning balance was 40,000, 1 lakh withdrawn, 1 lakh brought by new partner C as capital, and 50,000 for goodwill. It is also brought in cash. That's why. And after bringing the premium for goodwill, half amount of premium for goodwill is withdrawn by the old partner. Then 18,750 minus and minus 6,250, and after that 1,65,000 is the closing balance of the cash account. And when we added all the assets and liabilities side, it will tally 11,02,900 and 11,02,900. एक बार क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरीके से देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, स्टॉक वैल्यू हो गई थी, स्टॉक इंक्रीज कर गया था, स्टॉक डिक्रीज कर गया था 7% से 1,80,000 हमारा बैलेंस शीट में दिया हुआ था वैल्यू। हम यहाँ भी रिकॉर्ड करते हैं और तुरंत उसके साथ साथ यहाँ भी रिकॉर्ड करते हैं, दोनों इफेक्ट हमारा चलना चाहिए। यहाँ पे हम टू स्टॉक लिख रहे हैं तो 1,80,000 7% के रेट से हमारा 12,600 हमारा आ गया, तो हम तुरंत इसका यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे स्टॉक 180 और इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पे दिखा देंगे। डबल इफेक्ट तुरंत हमको दिखाना चाहिए, एक साथ अकाउंट हमको ओपन करना चाहिए। अकेले अकाउंट कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए फुल फ्लेज का क्वेश्चन करते समय। तो ये दोनों चीजें हमने यहाँ पे पोस्ट कर दी। उसके बाद फिर मशीनरी भी उसकी भी वैल्यू आपकी डिक्रीज हो गई थी, और जब मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो 2 लाख का 5% के रेट से मेरा 10,000 आ गया, और 10,000 ये भी डिक्रीज हुआ है, तो मशीन की वैल्यू में से 10,000 माइनस होकर 190 यहाँ पे शो हो जाएगा। फिर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये एक प्रोविजन करना है हमको, प्रोविजन लायबिलिटी के जैसे होता है, और लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे इसलिए ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, और लॉस है एक तरीके से हम मान रहे हैं। और 10,000 अब हमारा ये लायबिलिटी होगी, तो अब हम क्या करेंगे, डेटा में मतलब बुक डेट्स में से हम इतना प्रोविजन इसका माइनस करके ही हम ऑलरेडी प्रोविजन को क्या करते हैं, डेटर में से माइनस करके दिखाते हैं। यस सर, इसलिए हमने प्रोविजन को इसमें से क्या करके माइनस करके दिखा दिया 1,90,000। अब आपका क्या आ गया, ये आपका बुक डेट्स हो गया 1,90,000। एंड फिर एक अनफॉर्सीन लायबिलिटी के लिए 15,000 का प्रोविजन था, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, इस साइड में आएगा और तुरंत हम लायबिलिटी साइड में भी यहाँ पे भी दिखा देंगे। आप दोनों इफेक्ट तुरंत शो करिए, तभी जाके आपका क्वेश्चन एक्यूरेट होगा। और फिर हम क्या करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हुई, जितने वैल्यू से इंक्रीज हो रही है उसको यहाँ पे दिखाना है, और ये वैल्यू ऐड करके लैंड बिल्डिंग की वैल्यू में, और यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा। फिर एक्रूड कमीशन की भी बात थी। एक्रूड कमीशन एसेट होता है हमारे लिए, और एसेट ये हम अभी रिकॉर्डेड नहीं था, अब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एसेट इंक्रीज कर जाएगी और ये मेरा क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और इसको हम एसेट साइड में तुरंत दिखा देंगे। ये जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में इसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है सर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, और ये मेरा ओल्ड रेशियो 3:1 था, और उसमें हमारा ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपका ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जितना ये लेकर आ रहे हैं सी कैश में उसको कैपिटल में, इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आते हैं उसको ओल्ड पार्ट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लीजिएगा, और कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के बाद ओल्ड माइनस न्यू करके कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा। उसको मैंने कैलकुलेट करना नहीं बताया है इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में ऑलरेडी वो डिस्कस है। तो ये आपका प्रीमियम फॉर गुडविल ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी फर्स्ट केस जो होता है जब नया पार्टनर का बस केवल हिस्सा दिया हुआ है, कितना शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा है, और
कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो इसका मतलब है ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 है, और इसमें हमने इसको क्या कर दिया, बांट दिया। इसका हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड पार्टनर हाफ अमाउंट लेकर चले गए, तो इसका हाफ इतना होता है और इसका हाफ इतना होता है, ये लोग लेकर चले गए। फिर ये बैलेंस आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इस बैलेंस को हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं, और हमारा देखिए हर डबल इफेक्ट कंप्लीट हो चुका है। एक कैश अकाउंट की बात आती है, 40,000 आपका कैश बिगिनिंग में था, फिर आपका 1 लाख आपका क्या था, 1 लाख वो कैपिटल लाया था, 50,000 और क्या किया था सब 50,000 प्रीमियम के लिए लेके आया, उसका हाफ दोनों पार्टनर निकाल कर लेकर चले गए, तो उसको हमने जो है माइनस कर दिया। टोटल अभी फिगर कितनी आ रही है कैश बैलेंस, 1,65,000। जब एसेट और लायबिलिटी का टोटल करेंगे तो हमेशा इक्वल आएगा। क्वेश्चन आपका तुरंत पूरा कंप्लीट होगा, फुल फ्लेज में कंप्लीट होगा। ये आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है एडमिशन का। ऐसे ही क्वेश्चन हम थोड़ा सा बस को एडजस्टमेंट चेंज करके और आगे आएंगे। जर्नल एंट्री की बात आ गई, यदि जर्नल एंट्री आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जर्नल एंट्री तो बहुत ही इजी है सर। जर्नल एंट्रीज का क्या होगा, फर्स्ट का है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, अब ये स्टॉक है तो टू स्टॉक रिड्यूस हो गया, और क्या रिड्यूस हुआ, मशीनरी रिड्यूस हो गया है, टू मशीन कर लीजिए, और क्या हो गया, इस तरीके से ये दोनों का आप लिख देंगे बीइंग एसेट रिड्यूस्ड। फिर उसी तरीके से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, प्रोविजन फॉर अनफॉर्सीन लायबिलिटी है, तो उनके लिए करना होगा। तो फिर आप रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर अनफॉर्सीन लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी एंड टू ये क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इस तरह करके आप ये एंट्री कर सकते हैं दोनों का मिक्स से, तो दो दो चार ये एंट्री हो गई। ये लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज कर रहा है और एसेट भी ये भी इंक्रीज कर रही है, तो इसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड कमीशन डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि ये रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में है इसलिए जनरल एंट्री में रीवैल्यूएशन क्रेडिट में होगा। और फिर उसके बाद हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री कर लेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी ये एक एंट्री कर लेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो आपकी इन सब की जनरल एंट्री हो गई। ये ओपनिंग का जनरल एंट्री होता नहीं है, और ये इस प्रॉफिट बंटवारे का जनरल एंट्री हो गया। अब क्या है, दो जनरल एंट्री और आपकी बच गई, दो जनरल एंट्री। सर कौन, एक तो पहले वो कैश लाएगा, कैश लाएगा, और कैश लाएगा तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, कैश लाने की क्या एंट्री हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कैश लाया, इसकी आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और जितना ये गुडविल का 50,000 है वो, और 1 लाख इनका है, और टोटल 1,50,000 यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। ये इसको मैं बता रहा हूँ क्योंकि जनरल एंट्री नॉर्मली आप लोगों को आती है, बस मैं एक रिवीजन पर्पस से इसको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। तो सर उसकी क्या एंट्री होगी, तो उसकी एंट्री और भी आसान, क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। ये ए और बी में बढ़ जाएगा, और आप लोगों को पता है कितना कितना बढ़ा है। प्रीमियम फॉर गुडविल 37,500, 37,500, 12,500, ये 37,500 एंड 12,500, और ये आपका 50,000। ठीक, फिर उसके बाद
अब ये लोग बैंक से ये लोग पैसा निकाल कर लेके चले गए हैं गुडविल वाला, तो उसकी भी एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या प्रीमियम फॉर टू बैंक अकाउंट, ओनली टू बैंक अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ पे ये आपको बता रहा हूँ। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये कितना निकाल के लेके गए हैं 18,750 और इनका 6 250 और टोटल आपका कितना आ गया, टोटल आ गया 25,000। यही था, ये टोटल क्वेश्चन होता है जिसमें सबसे लेंथी क्वेश्चन था, जिसमें आपका जनरल एंट्री भी आ गई थी, रीवैल्यूएशन अकाउंट था, पार्टनर्स कैपिटल था और बैलेंस शीट थी। कैसे करना है मैंने हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में बताने का प्रयास किया। आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन कहाँ का है, क्वेश्चन डीके गोयल का 2020 और 21 का क्वेश्चन नंबर ये आपका 50 था, एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 50, एडमिशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम डीके गोयल को। तो मैंने क्वेश्चन रीड भी किया है एक बार आप लोगों को, और आप लोग चाहें तो इन ओल्ड फिगर आपका बैलेंस शीट से यहाँ से आपको पता लग जाएगा, और लगभग में आप यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है फिर भी आप हम पूरे वीडियो को यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।